ڈنگا شہر میں تجاوزات آپریشن کی طرف سے متاثرین کی طرف سے اہلِ شہر کا گرینڈ جرگہ، جس میں چودھری قمر زمان قاہرہ کا خطاب۔ ایکشن کمیٹی کے ممبران کو شاباش ہوگا کہ انہوں نے عین جمہوری طریقہ سے آج وہ رستہ اختیار کیا ہے جو سڑک پہ ہونے والے احتجاج سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ہم احتجاجوں میں سڑکیں بلاک کرنے، احتجاج کو بڑا متشدد بنا دینے میں، کاروباری حکومت روک دینے میں کامیابی کی دلیل سمجھتے ہیں، لیکن بعض اوقات خاموشی اس سے بڑی احتجاج کی آواز بنتی ہے۔ آپ نے بہت اچھے طریقے سے، بڑے عین جمہوری طریقے سے آج شہر کے مختلف طبقات کو، سیاسی لوگوں کو، بار کو، اپنے جو تاجروں کی اپنی تنظیمیں ہیں، آپ نے ان کو یہاں اکٹھا کیا ہے، اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھا ہے، بڑا خوب رکھا۔ یہ الگ بات کہ یہ مقدمہ تو ہم نے آپ کی طرف سے سنا، دوسری طرف والوں کا مقدمہ ہوتا تو زیادہ بہتر لوگ درج کر سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے مقدمے میں بہت جان ہے، آپ نے بڑی ہرکریزی سے یہ کام کیا ہے۔ ساری سیاسی جماعتیں آج یہاں اکٹھی ہیں اور ہم سوچ سمجھ کے آئے ہیں۔ آپ نے ہمیں دعوت دی تو ہمیں پتا تھا کہ ہم کیوں جا رہے ہیں، تو آپ کی آواز میں آواز ملانے کے لیے اکٹھے ہیں۔ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تھوڑی ہوئی ہے، زیادہ ہوئی ہے، یہ تو ڈٹرمن ہوگا، لیکن جو بھی صورتحال بنی ہم اس میں آپ کے سائڈ پہ کھڑے ہیں۔ یہ بات بھی درست ہے کہ آپریشن صرف ڈنگا میں نہیں ہوا، آپریشن باقی شہروں میں بھی ہوا ہے، کہیں تھوڑا کہیں زیادہ۔ ڈنگا میں اس آپریشن کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے اور لوگوں کی پراپرٹیز بہت زیادہ اس میں آئی ہیں۔ دالا موسیٰ میں بھی وہاں بھی کوشش کی گئی، ہم نے مقدور بھر کوشش کی ہے کہ وہاں کے ریڈی بانوں یا عام آدمی کی جو زندگی ہے اس میں آسانی رہے۔ جب نشان لگائے گئے تھے تو اگر آپ اس وقت اپنے یہ کاغذات یا کچھ چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کر لیتے تو شاید ہم انڈیویجولی یا اکٹھے ہو کے اس وقت زیادہ بہتر طریقے سے آپ کی خدمت کر پاتے، آپ کا دفاع کر پاتے۔ مضبوط آواز ہے نا، آج حکمران جماعت کے نمائندے بھی بیٹھے ہیں۔ یہ الگ بات کہ میرے بھائی نے ریزولوشن پڑھتے ہوئے مطالبہ کیا ہے ایم این اے اور ایم پی اے سے، ہم سے نہیں کیا، جو یہاں بیٹھے ہیں ہم سے مطالبہ نہیں کیا، لیکن یہ بات درست ہے کہ ہم سے نہیں کیا، لیکن پھر بھی تمہارے تباہ کے لیے کیا۔ لیکن اس کے بعد کیونکہ میرا آپ کا مطالبہ نہیں، میں اپنا نقطہ نظر دے رہا ہوں، آپ نے باتیں کی، ہم بولے۔ تھینک یو۔ مقرر کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، ویسے میرا بھی ہے۔ سو عرض یہ ہے کہ یہ بڑا سنجیدہ معاملہ، میں آپ کو اس لیے اپریشیٹ کر رہا ہوں، یہ جمہوری طریقہ ہے۔ ہم اکٹھے بیٹھے ہیں، ہم ساری جماعتیں ہیں، آج یہاں سے جو ریزولوشن جائے گا وہ اخبارات میں چھپے گا، وہ میڈیا پہ جائے گا، حکومت کو بھی سوچنا پڑے گا، ڈی سی کو بھی سوچنا پڑے گا، اور ہم انڈیویجولی بھی ان سے بات کریں گے، یقیناً کریں گے۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، صرف اتنی گزارش ہے کہ حکومتیں ہماری ہوں، کسی اور کی ہوں، آج ہوں یا کل والی حکومتیں ہوں، ہر دور میں حکومتوں سے ہائی ہینڈڈنس ہوتی ہے۔ جب حکومتیں آپریشن شروع کرتی ہیں یا اس طرح کے کوئی کام کرتی ہیں تو اس میں گناہ گاروں کے ساتھ بے گناہوں کا بھی رگڑا نکل جاتا ہے، اور اس کے بعد میں ازالے ہوتے ہیں۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کی قدریں ابھی وہ ترقی یافتہ نہیں بنی جس کے لیے ہم یہاں کھڑے ہو کے مطالبے کر رہے ہیں کہ فلاں فلاں ذمہ دار ہے، فلاں کو ذمہ دار ٹھہرانا ہوگا۔ کون ٹھہرائے گا؟ ہم ہی نے ٹھہرانا تھا۔ تو پہلے اس مسئلے کے حل کی طرف آنا چاہیے ہمیں۔ آج کی بریفنگ میں جو باتیں سامنے آئیں، میرے خیال میں اس کے دو راستے تھے۔ ایک تو بہتر ہوتا کہ آپ ہمیں ابھی تک آپ نے انتظامیہ کے ساتھ کہاں کہاں کیا ملاقات کس لیول پہ ہوئی ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ میاں طارق صاحب کی قیادت میں آپ کا ایک وفد چیف سیکرٹری صاحب سے بھی ملا تھا،
बाकी इंतजामिया से भी मिला था। यही आप काम कर सकते थे, कोशिश की गई है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता हमें भी आप इसके बारे में आगाह करते और हम उसके बारे में भी आपसे कुछ शेयर कर पाते कि कौन सा फोरम है जहाँ पे जाना मुनासिब है। और उसके अलावा दूसरा पहलू है अदालती कार्रवाई का, कि क्या आपने मुतासरीन ने, फोरम ने या इंडिविजुअली, क्या आपने कुछ स्टे ऑर्डर लिए हैं, कोशिश की है, सिविल कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट गए हैं, और उसमें क्या स्टेज है, आज आप कहाँ खड़े हैं। उसके बाद अगली राय आपको देना आसान होता, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है, जो मैं समझा हूं मेरी नाका शकल में, इस वक्त जरूरत समर की है कि पहले इंतजामिया से भी बात की जाए, क्योंकि जो आपने ब्रीफिंग दी है, ये ब्रीफिंग इंतजामिया के सामने इससे पहले भी रखी गई होगी, मुझे नहीं पता रखी गई है कि नहीं, रखी गई होगी, और उसमें कुछ गुफ्तगू भी हुई होगी। यहाँ पे हम उनको भी इन्वाइट करते, डीसी साहबा को भी कहते कि आप अपने स्टाफ को भेजें और वो भी यहाँ पे आके अपनी बात करें ताकि यहाँ बात खुल सके। लेकिन हम कोई अदालती फोरम नहीं है, अवाम का जिरगा है। आपने अपने हक में जिंदा के अवाम को अपना मुकदमा पेश किया, हम आपके साथ हैं और आपके वकील बन के आगे लड़ेंगे। लेकिन इसके लिए पहले तो डिप्टी कमिश्नर साहबा से आप जिसको कहेंगे हम जाने को तैयार हैं। हम कलेक्टिवली भी जा सकते हैं, इंडिविजुअली भी जा सकते हैं, उनसे बात की जा सकती है, कमिश्नर साहब से बात की जा सकती है। मैं चाहूँगा मियाँ साहब इस पर रोशनी डालिए कि आप चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गए थे, वहाँ आपने जो गुफ्तगू की उन्होंने क्या कहा इस पर, क्योंकि कोई रास्ता निकाला जा सके। मैं वही कहूँगी आप इस पर जरूर रोशनी डालिए, वो रास्ता इख्तियार किया जाए। सियासी तौर में मैं भी चीफ मिनिस्टर, तो यहाँ पे हम उनको भी इन्वाइट करते, डीसी साहबा को भी कहते हैं कि आप अपने स्टाफ को भेजें और वो भी यहाँ पे आके अपनी बात करें ताकि यहाँ बात खुल सके। लेकिन हम कोई अदालती फोरम नहीं है, अवाम का जिरगा है। आपने अपने हक में जिंदा के अवाम को अपना मुकदमा पेश किया, हम आपके साथ हैं और आपके वकील बन के आगे लड़ेंगे। लेकिन इसके लिए पहले तो डिप्टी कमिश्नर साहबा से आप जिसको कहेंगे हम जाने को तैयार हैं। हम कलेक्टिवली भी जा सकते हैं, इंडिविजुअली भी जा सकते हैं, उनसे बात की जा सकती है, कमिश्नर साहब से बात की जा सकती है। मैं चाहूँगा मियाँ साहब इस पर रोशनी डालिए कि आप चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गए थे, वहाँ आपने जो गुफ्तगू की उन्होंने क्या कहा इस पर, क्योंकि कोई रास्ता निकाला जा सके। मैं वही कहूँगी आप इस पर जरूर रोशनी डालिए, वो रास्ता इख्तियार किया जाए। सियासी तौर में मैं भी चीफ मिनिस्टर साहबा से कोशिश करता हूँ, उनसे बात करूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करूँ, जो मुतल्लिका आपके सियासी लोग हैं उनसे बात करके ये मामला एक दफ़ा रीओपन किया जाए और इसको रीअसेस किया जाए न्यूट्रली। यहाँ की जिले इंतजामिया की बजाय वो किसी और जिले से जो इंतजामी अफसरान है उनको भेजे और वो रिकॉर्ड चेक करके और उसके मुताबिक वो ग्राउंड के ऊपर ये देखें कि ज्यादती हुई है, उन्होंने इंतजामिया ने अपने इख्तियार से तजावज़ किया है या कुछ तजावज़ था जिसके नाम पे उन्होंने ओवर डूइंग कर दी है, सही किया है, गलत किया है, ताकि डिटरमिन हो सके। अभी तो एक साइड की बात है, ये कोशिश करते हैं। मैं इंशाल्लाह कल ही कोशिश करूंगा चीफ मिनिस्टर साहिबा से बात करने की, इतनी आसानी करूंगा और हमें यकीन है कि ये मामला उनकी तरफ से रीओपन होगा। इसके ऊपर डायलॉग जरूर होगा इंतजामिया के साथ, लेकिन इंतजामिया पे छोड़ने की जरूरत नहीं है। जितने सॉलिड रीजंस के साथ आप, जितने सॉलिड सबूतों के साथ आप बात कर रहे हैं और आपने अब रिकॉर्ड क्योंकि इकट्ठा कर लिया है जैसे तैसे, मुश्किल नहीं किया होगा इंतजामिया, अपने खिलाफ सबूत तो आपको देने से रही तो बहुत मुश्किल से किया होगा, लेकिन आप मुश्किल में रास्ते पैदा करना जानते हैं, इसलिए आपने कर लिया। सो उसकी रोशनी में लोअर कोर्ट्स में आपको कोई इंसाफ नहीं मिल सकता। अब स्टे ऑर्डर तो होने नहीं है, स्टे ऑर्डर से कुछ प्रॉपर्टियों के हैं वो तो आपके चल रहे हैं, लेकिन जिनकी गिर गई वो तो गए, अब तो वो स्टे ऑर्डर की कैफियत में नहीं होंगे। अब उसके ऊपर अगर इंतजामिया ने भी काम करना है तो ज्यादा से ज्यादा वही इसलिए हो सकेंगे। लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि जो सड़कें और बड़े काम होते हैं उनके ऊपर स्टे लोअर कोर्ट्स के हो भी जाए तो इंतजामिया काम नहीं हो, ये बदकिस्मती है हमारी। सो मेरी गुजारिश यह है कि आपको इन सबूतों के साथ किसी अच्छे वकील के
हाई कोर्टों के अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, वहां भी मुंह देखे जाते हैं। जज साहबान भी आजकल जिस हालत के शिकार हैं, वो भी वकील का चेहरा देख के रिलीफ देते हैं। तो मेरी कोशिश होगी, आप किसी वक्त अगर मुझे हुक्म करेंगे तो मैं, जो मेरी जमात के मेरे सीनियर ताल्लुक वाले दोस्त हैं वो कला, उनमें से किसी के साथ आपकी मामलत के लिए आप उनको कायल कर देते हैं और किसी दोस्त के जिम्मे लगाएंगे तो वो कर देंगे। आपके बाहर के लोग हैं, इनके सीनियर वहां मौजूद हैं, इनको कह लीजिए अगर मेरे लायक होगा तो मैं हाजिर हूँ, मेरी जमात के लोग भी हाजिर हैं कि आपको ये मुकदमा इन सबूतों के साथ आपको हाई कोर्ट में लेके जाना है। और जब आप अपना ये मुकदमा हाई कोर्ट में लेके जाएंगे तो इसको मीडिया भी कवर करेंगे, वाइडली मीडिया कवर करेंगे। अभी तो आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डालेंगे इसको, अभी तो आपके लोकल अखबार के थोड़ा सा इसको नेशनल अखबार भी कवर कर लेंगे कोशिश करके। लेकिन हुकूमत के खिलाफ भी बात हो तो जो फॉर्मल मीडिया है आपका, वो इसको तभी उठाएगा जब ये हाई कोर्ट के अंदर जाएगा, वहां से इसके ऊपर डिबेट होगी, हम भी इसके ऊपर बात करने के लिए आसान हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये दो साइड जो पॉलिसी है इसको अडॉप्ट करके ये जो रास्ता आपने इख्तियार कर लिया वेरी गुड। लेकिन हुकूमतों पे कोई बड़े दबाव नहीं आया करते, एहतजाज तो सड़कें भी बंद हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, आगे लग जाती हैं, तो हुकूमतें आसानी से नहीं मांगा करती। लेकिन हम उनके साथ मुकालमा करेंगे, यही बेहतर रंग है, बिल्कुल करना चाहिए, हम भी करेंगे। और अदालती रास्ता भी इख्तियार करना चाहिए। आपको जहां जरूरत होगी, मेरे बाकी साथियों ने भी कहा, अपनी इंडिविजुअल हैसियत में भी, उनकी जमातें भी, मैं भी आपको अश्योर कराता हूँ, मेरे साथियों की किसी जगह पे आपको किसी तरह किसी मुआवजत की जरूरत होगी, हम आपके साथ होंगे। मैं फिर आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक नई तरह डाली है, एक नया अच्छा खुशगवार ये रास्ता इख्तियार किया है कि इंतजामिया और हुकूमत वक्त की तरफ से होने वाला ये जो अमल है, ये दुरुस्त है या गलत है, ये अपनी जगह है, लेकिन आपने इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ बड़े जमहूरी रंग में दिया है, लोगों को इकट्ठा किया है। और मैं अहले शहर को भी, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाल के अपने इन भाइयों के साथ खड़े हुए। इनके साथ जाती तो हुई है ना, थोड़ी हुई है, जो जाती हुई है, ज़्यादा हुई है, तो आप इनके साथ खड़े हुए हैं। आप भी इस बात के मुस्तहिक हैं। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, ये बात याद रखिए, दुनिया में कोई हुकूक देता नहीं है, हुकूक लड़ के लिए जाते हैं। और लड़ाई सिर्फ डंडा और बंदूकों से नहीं होती, फोरम पे भी होती है। और जब तक आप जमहूरी तौर पे लोग इकट्ठे होकर अपनी आवाजें तवाना नहीं करते, न हुक्मरानों और सियासतदानों के दिमाग दुरुस्त होते हैं, न इंतजामिया के दिमाग दुरुस्त होते हैं, न उनके किरदार दुरुस्त होते हैं, न आवाम के हकूक की हकीकी मानों में निगरानी हो सकती है। इसलिए कानून इतना अहम नहीं है, अवाम की ताकत, अवाम की आवाज ज्यादा अहम है। दुनिया भर में पब्लिक ओपिनियन से मुआशरे चलते हैं, सिर्फ कानून काफी नहीं होता। और आज आपने अपना पब्लिक ओपिनियन बड़े भरपूर रंग में दिया है। आपको ऑर्गेनाइज करने पे मुबारक हो और आपको शामिल होने पे ये एक बड़ी अच्छी जहर है। इंशाअल्लाह हम आपके साथ